Hello everyone, Namaste, hope all of you are well. In the previous lecture of organic chemistry, fifth lecture, we have discussed about the movements of electron, attacking reagent, bond fission, and the most important, the effects due to the electrons movement, in which we have discussed till inductive effect, resonating effect. There were two effects which were left in the previous video. In this video or in this lecture, we are going to discuss the two rest of the effects of electrons movement. The one which is known as electromeric effect and the another that's hyperconjugation. First of all, let's start. What is electromeric effect? Many students get confused in inductive effect, resonating effect, electromeric effect, which is also known as mesomeric effect. Dear students, this effect is due to pi electrons. This is a temporary effect, it's not a permanent effect. When any attacking reagents comes near the pi electrons of an organic compound, then the pi electrons shift towards the carbon atom, and this effect is called electromeric effect. There are two types of electromeric effect. Plus electromeric effect means positive electromeric effect and negative electromeric effect. So here you can see, as it's written on the board, that it is a temporary effect. The organic compounds having multiple types of bond. Multiple types means double bond and triple bond, ethene, ethyne, propene, propyne, butene, butane. So they are having multiple types of bonds. They show this type of effects in the presence of attacking reagents only. If any organic compounds have multiple bonds like double and triple bonds, when that double and triple bonds comes in the contact of this attacking reagents, then only these temporary effects are being produced, and this type of temporary effect is called electromeric effect. In this effect, there is a complete transfer of pi electrons. There is a complete transfer of pi electrons which are shared paired with one of the adjacent atom, which are joined with these multiple bonds of double and triple bonds. Now what happens to this complete transfer of pi electrons or the shared paired pi electrons which are having a joint of multiple atoms to an attacking reagent? Then as this electron transfer from one atom to the adjacent atom, then this effect is produced, and this type of effect is called electromeric effect. There are two types of electromeric effect: positive electromeric effect and negative electromeric effect. Now how will you understand and differentiate between the positive and negative electromeric effect? So first of all, positive electromeric effect. In this effect, the pi electrons are transferred to which the reagent gets attached. The main thing is, in a pi bond or in a triple bond, you must know in a triple bond there are two pi bonds. In a double bond there is one pi bond. So when there is a function which is attached with this, both the carbon atoms, they are adjacent to each other and they are having a pi electrons connected with each other. So this pi electron will transfer where the reagent or attacking reagents is going to be attached. Just suppose here this is a ethene, first carbon, second carbon. In this first carbon is attached with the second carbon with the pi bond. This pi bond will come here because this carbon is going to attach as a attacking reagent. So here you can see here, as I have shown here, that H plus is an attacking reagent. So as the H plus is an attacking reagent, and in this double bond this H plus is going to attach here, so wherever this pi electron will be transferred, there only this H plus going to be attached, and this type of effect is called
positive electromagnetic effect. Means you have to remember, dear students, that pi electron transfer will be on that carbon where the attacking reagent is going to be attached, and this type of effect is called positive electromagnetic effect. Now negative electromagnetic effect, wherever the reacting or attacking reagent is going to be attached, that side pi electron is not going to be transferred. Means opposite of positive electromagnetic effect. So pi electrons are transferred to which carbon or which attaching reagent is not going to be attached. Just suppose here cyanide ion is there. Cyanide ion is going to be attached on this carbon. So pi electron will transfer to this carbon. Means in positive, the pi electron will transfer to that carbon atom where the attacking reagent is going to be attached, and negative electromagnetic effect, the pi electron will transfer to that carbon where the pi electrons are going to be transferred to that carbon atom where the attacking reagent is not going to be attached. So just suppose here if pi electrons is transferred to this carbon atom, so the attacking reagent will attach with this carbon. You can see here pi electron has transferred to this carbon, it has got a negative charge on it, and the attacking reagent has been attached to the opposite of that carbon. So this type of effect is called electromagnetic effect. तो बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक टेम्पररी इफेक्ट है. पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर किसी भी इथीन, इथाइन, मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में इस तरह का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जहां पर खास करके जो कोई अटैकिंग रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर जहां पर वो अटैक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पे होगा. तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, खास करके जब अटैकिंग रिएजेंट हो तब. उससे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे. तो जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा तब तक ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं होंगे. तो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले पाई इलेक्ट्रॉन तब ट्रांसफर होगा जब अटैकिंग रिएजेंट सामने आएगा. अटैचिंग रिएजेंट जिस तरह से सामने आया तो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम के पास ट्रांसफर हो गया, और जहां पर ट्रांसफर हुआ वहीं पर अगर अटैचिंग रिएजेंट जुड़ता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे, और अगर वहां पर अटैकिंग रिएजेंट नहीं जुड़ता है तो उसको हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहे, अदरवाइज इसको नोटबुक में लिख लीजिए. अब आ जाइए लास्ट टॉपिक, स्पेशली खासकर मैकेनिज्म का, ये है हाइपर कंजुगेशन. बहुत सारे बच्चे जो है हाइपर कंजुगेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर तब डिफेक्ट्स क्या रहा ये हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट है, उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन ये एक परमानेंट इफेक्ट है. और परमानेंट इफेक्ट में ये करता क्या है, ये खास करके जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम के साथ अटैच है वो उसको अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच करके उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच इट इन्वॉल्व्स delocalizations of sigma electrons of carbon hydrogen bond of an alkyl group which is directly attached to the double bond या which is directly attached to the unsaturated carbon atom. इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं. यहाँ पे देखिए इसको एक और तरीके से मैंने लिखा है, when carbon hydrogen sigma electrons are in conjugation to pi bond, when carbon hydrogen sigma electrons are in conjugations of pi electron or pi bond, this conjugation is known as hyperconjugation. कहने का मतलब आप यहाँ पे साफ समझ जाइए. ये समझ जाइए C2H5 इथाइल आयन. C2H5 में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये सिग्मा वाला जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड इसको पाई बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन को ये प्लस के रूप में बाहर निकालेगा.
कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन किया। अब बोलोगे सर वापस ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वापस बोलोगे सेम चीज यहाँ पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर वापस से HCH और ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ये डबल बॉन्ड। बच्चों आप लोगों को याद क्या रखना है वो चीज बता देता हूं। यहाँ पर ये एक परमानेंट इफेक्ट है जिसमें खास करके जो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव्ड है तो उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप C2H5 में कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को देकर के वो पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो वापस जैसे ही इस हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है इसको वापस से इलेक्ट्रॉन देता है और खुद के पास कमी कर लेता है। सेम चीज ऐसे देखता है, तो यहाँ पर इसको वापस से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे सेम चीज को यहाँ पर मैंने इथाइल ग्रुप, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप के साथ समझ लीजिए, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये CH2, तो ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों याद रखना, तो ये सिग्मा बॉन्ड में ये क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है जो सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे चला जाएगा, जो कार्बन जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है उसके जो एडजेसेंट कार्बन एटम उसके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो जैसे इसके पास आएगा तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था ये हाइड्रोजन प्लस में आ गया, आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन और ये जो डबल बॉन्ड था वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस कार्बन एटम के पास। समझ में आया आप लोग? तो जैसे ये हाइड्रोजन एटम देखा इसके पास कमी हुई तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, वापस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये हाइपर कंजुगेशन होती रहेगी, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और जिस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर में आपको पॉजिटिव चार्ज शो करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप विल हैव लेस देन 1 बॉन्ड। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि p ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल वैकेंट है, क्योंकि आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 1s2 2s2 2p2, और खास करके जो डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें जो p ऑर्बिटल वैकेंट होंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश। जैसे यहाँ पे इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप को इथीन ग्रुप बनाया, तो इथीन ग्रुप किसने बनाया, तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड वाले ने बनाया, और वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड उसी बॉन्ड को इसने पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया। इसीलिए मैंने लिखा है व्हेन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन टू पाई बॉन्ड, सो दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो बच्चों हम लोगों ने टोटल 4 तरीके के इफेक्ट्स खास करके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये लास्ट इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के कारण जो होता है वो है हाइपर कंजुगेशन। इसके बाद इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो ये सारे रिएक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको ना समझ में आए तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए, और अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।